Bhāgavatam ki jai. Reading Śrīmad-Bhāgavatam, 3rd Canto, 3rd chapter, titled as Lord's Pastimes out of Vṛndāvana, text number 19. You can repeat after me. Bhagavānapi Vishwātma Lokaveda Pathanuga Kāmāņ Sheve Dvāravatyam Asakta Sankhyaṁ Astita. Translation. Simultaneously, the personality of Godhead enjoyed life in the city of Dwarka, strictly in conformity with the Vedic customs of society. He was situated in detachment and knowledge as enunciated by Sankhya's system of philosophy. Hare Krishna. So Maharaj Yudhishthira was established as an emperor of the whole universe at that time, after the Mahabharata war was over. And at that time Lord Krishna went to Dwarka and he stayed there. So we'll read the purport by Srila Prabhupada. While Maharaj Yudhishthira was the emperor of the earth, Lord Shri Krishna was the king of Dwarka and was known as Dwarkadish. Dwarkadish ki jai. Like other subordinate kings, he was under the regime of Maharaj Yudhishthira. Although Lord Shri Krishna is the supreme emperor of entire creation, while he was on this earth, he never violated the principles of the Vedic injunctions because they are the guide for human society. This is very important. So there are certain Vedic injunctions, there are certain rules and regulations which one must follow. And Lord Krishna also obeyed all those Vedic injunctions because they are like a guidance. And all those Vedic injunctions are mentioned by Lord Krishna in Bhagavad Gita. Starting with Sankhya Yoga, then Karma Yoga, then Ashtanga Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. All those injunctions are there in Bhagavad Gita. And Lord Krishna obeyed all those rules and regulations. And they were the guide. And they are still the guide. And as Lord Krishna obeyed, because yada acharati shrestha. If Lord Krishna does not obey, then other people will not also say, okay, Krishna didn't follow, so will not follow. So that is why Krishna obeyed all the Vedic injunctions. Regulated human life according to Vedic principles, which are based on system of knowledge, is called Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is the real way of enjoyment of necessities of life. So what is this Sankhya philosophy? Sankhya philosophy is second chapter of Bhagavad Gita. Sankhya Yoga. Sankhya means analytical. तो भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य फिलोसॉफी, सांख्य योग अर्जुन को समझा रहे हैं. तो उसके स्टार्टिंग में भगवान क्या कहते हैं कि हम देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मह्यति. तो पहला सांख्य फिलोसॉफी का प्रिंसिपल क्या है? तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है. वी आर स्पिरिट सोल्स. और फिर ये शरीर हमें किस लिए दिया गया है? तो शरीर हमें दिया गया है भगवान की सेवा के लिए. ये शरीर का उपयोग है भगवान की सेवा करना. तो कैसे सेवा करनी है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म करते रहना है शरीर से और उसका जो फल है उसकी अपेक्षा न करते हुए सभी फल भगवान को समर्पित करने हैं. और फिर शीतोष्ण सुख दुःखदा तम सतितिक्षव भारत. और ये कर्म करते वक्त हमें कोई सुख आए या दुख आए तो ये ठंडी और गर्मी समझ के हमें उसको सहन करना है और फिर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है.
सभी इंद्रियों पे हमें विषय। हाँ, तो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अनेक इच्छाएं आपके मन में आएगी, जैसे कि समुद्र में पानी, नदियों का पानी जाता है, वैसे ही बहुत सारी इच्छाएं तुम्हारे हृदय के अंदर आएगी। फिर आपको क्या करना है? वो सभी इच्छाओं को कंट्रोल करना है। तो क्या कहते हैं कि अपूर्यमानामचलं प्रतिष्ठां समुद्रमां प्रविशन्ति यद्वत् तवत् काम यं प्रविशन्ति सर्वे स्वशान्तिमप्नोति न काम कामी। तो सांख्य फिलोसॉफी के अंत में भगवान अर्जुन को कहते हैं, एज अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड by incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve a peace, and not the man who strives to satisfy his desires. So, as the ocean is very big and all the rivers enters into ocean, but ocean never get disturbed, it never overflows. Similarly, a Krishna conscious person, he is like an ocean, and all those desires, material desires to enjoy, might enter in our mind, but Krishna conscious person is not at all disturbed by this. तो कृष्ण कॉन्शियस में इंद्रियों का कंट्रोल बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Therefore, my dear, one whose senses are restrained from their objects is certainly for of study intelligence. ये सेंसेस क्या है? तो इंद्रिया, हमारी जो इंद्रिया है ये बहुत स्ट्रांग है। कितनी स्ट्रांग है? तो कहते हैं, इंद्रियाणामि चरतम यमनो अनुविद्यते तदश्यति प्रज्ञानाम् वायुर्नावामि वाम्बसि। As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which mind focuses can carry away man's intelligence. So, अगर हमारी एक भी इंद्रिया लूज पड़ जाती है और भोग करने की इच्छा करती है, तो हम रास्ते से भटक जाते हैं, भगवान की भक्ति के रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए हमें जो भी इंद्रिया है उसको हमेशा संयम से भगवान की सेवा में लगाना है। ये इंद्रिया, ये शरीर जो है, ये हमें भगवान की सेवा के लिए मिला है। ये सांख्य फिलॉसॉफी है। सांख्य फिलॉसॉफी यानी कि आत्मा जो है, इसको भगवान के पास जाने के लिए ये शरीर का उपयोग जरूरी है, और इस शरीर का उपयोग करके हम भगवान की सेवा करके भगवान के पास जा सकते हैं और आत्मा को लेके जा सकते हैं। विदाउट सच नॉलेज, material body तो temporary है, it is a temporary. Without such knowledge, detachment and custom, the so-called human civilization is no more than animal society of eat, drink, marry and enjoy. तो अगर हम इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर is as good as being animals. आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यता पशुभिः समाना धर्मो ही एका अधिको विशेषो। तो महाभारत में कहा गया है ये कि अगर हम आहार निद्रा भय और मैथुन करते रहेंगे तो फिर एक जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। जानवर को कोई नियम नहीं रहता है, जानवर कहीं कुछ भी कर सकता है, जानवर को कपड़े पहनने का नियम नहीं है। मनुष्य के लिए कपड़े पहनना जरूरी है। जानवर को रास्ते में भी खा सकता है, जमीन पर पड़ा हुआ, हम ऐसा नहीं कर सकते। जानवर, हम देखते हैं कि जानवरों के लिए कोई ऐसा लॉ कानून नहीं बना है कि ट्रैफिक लाइट है, ये लाइट है, वो लाइट है उनके लिए। लेकिन मनुष्य के लिए सभी नियम हैं। जैसे कि हम जब एयरप्लेन पे जाते हैं, हमें सभी नियम है, लेकिन वो एयरपोर्ट पे अगर कुत्ता गया तो उसको कोई नियम नहीं है, उसको सिक्योरिटी चेक इन भी जरूरत नहीं है, वो कुत्ता सीधा अंदर जा सकता है, तो उसको कोई नियम नहीं है। इसलिए मनुष्य के लिए नियम है। तो ये नियम का पहला सिद्धांत है कि
इसमें हमें शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। तो ये शरीर को भोगने की वजह हम वो शरीर भगवान की सेवा में लगाए। तो ये है सांख्य फिलोसॉफी। Lord was acting freely and yet the Lord was acting freely as he willed, yet by his practical example he taught not to lead a life which goes against the principles of डिटैचमेंट एंड नॉलेज। हाँ, ज्ञान और वैराग्य भगवान ने, अगर भगवान तो सभी लोगों के अधिष्ठाता है, वो मालिक है सबके, तो भगवान तो सब कुछ आनंद कर सकते थे, भोग कर सकते थे, लेकिन भगवान ने अपने जीवन के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का शिक्षा दिया। भगवान को कोई सांदीपनी मुनि आश्रम जाने की जरूरत नहीं थी। भगवान जो थे, भगवान को सांदीपनी मुनि आश्रम में गए तो वहाँ डिटैचमेंट में रहे, वैराग्य में रहे, जो ऐसे गरीब ब्राह्मण के जैसे रहे। भगवान को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान लेने के लिए अपने गुरु के पास गए, भगवान को तो सब ज्ञान है, लेकिन भगवान हमारे अपने जीवन के द्वारा ये उदाहरण दे रहे हैं कि हमें भी ज्ञान भी पाना है और वैराग्य भी हमें डेवलप करना है। तो जैसे कि भगवान रामचंद्र जी है, भगवान रामचंद्र जी को जंगल में जाने की क्या ज़रूरत थी? भगवान रामचंद्र जी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, उनको जंगल में जाके ज़मीन पे सोने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के द्वारा एक आदर्श पुत्र का क्या फ़र्ज रहता है, आदर्श पुत्र कैसे हो सकते हैं हम, एक आदर्श राजा कैसे हो सकते हैं, ये सभी का हमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया। वैसे ही भगवान कृष्ण ने भगवद गीता द्वारा हमारा जीवन कैसे आदर्श हो सकता है ये हमें बताया। तो भगवान और भगवान की लीलाएं और भगवान के भक्तों का जीवन का चरित्र हमें ये भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करता है। और भक्ति के लिए क्या चाहिए? भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य। तो अगर भगवान के पास हमारी भक्ति डेवलप हो गई तो ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाते हैं, उसमें कोई सेपरेट प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम भक्ति में लगते हैं तो चाय, कॉफ़ी, मांस, अंडे, जुआ सब अपने आप ही निकल जाता है। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देख सकते हैं लॉट्स ऑफ hippies who were addicted to meat and gambling and intoxication, but all of them, all of a sudden, as soon as they joined bhakti, all those disappeared. तो भक्ति का ये साइड इफेक्ट है, पॉजिटिव साइड इफेक्ट कह सकते हैं आप भक्ति के। क्या पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं? तो सब गलत आदतें अपने आप ही निकल जाती हैं, तो उसको कहते हैं वैराग्य। हमें कोई विशेष प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ज्ञान, जैसे हम भगवद गीता पढ़ते रहते तो ज्ञान तो आते ही रहता है, भक्तों से सुनते हैं। तो मेडिटेशन इज जप को मेडिटेशन कह सकते हैं। जप इज पार्ट ऑफ भक्ति प्रोसेस। श्रवणम कीर्तनम यानी जप करना, उसको कीर्तन ही कहते हैं। Attainment of knowledge and detachment, as very elaborately discussed in Sankhya philosophy, is the real perfection of human life. तो ज्ञान और वैराग्य ये आ जाए तो ये जीवन का वैराग्य, ये सांख्य फिलोसॉफी का सार्थक अल्टीमेट एम है या ऑब्जेक्टिव है। देखिए, वैराग्य यानी क्या कि कुछ चीज़ें छोड़ देना। तो अभी जानवर छोड़ नहीं सकता है। जानवर चाहे तो भी कुछ, जैसे कि हम कहें कि हम चावल नहीं खाएंगे आज से, तो हम सोच सकते हैं, हम कर सकते हैं। जानवर ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि वो तो जो भी आएगा खा लेगा वो। तो ये जो इंद्रिय संयम है उसको कहते हैं डिटैचमेंट एक प्रकार की। तो ये मनुष्य में ही आ सकता है, ये जानवर में नहीं आ सकता। और जैसे कि भगवद गीता पढ़ना, भागवतम करना, ये मनुष्य ही कर सकता है, कोई जानवर नहीं कर सकता। तो जब हम ज्ञान और वैराग्य पाते हैं, यही जीवन का, ह्यूमन जीवन का पर्पस है।
Knowledge means to know that mission of human life is to end all the miseries of material existence, and that in spite of having to fulfill the bodily necessities in a regulated way, one must be detached from animal life. Fulfilling the demands of body is animal life, and fulfilling the mission of the spirit soul is the human mission. ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है कि ज्ञान और वैराग्य से क्या होना चाहिए, तो हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्ति होनी चाहिए, भोगने की इच्छा कम हो जानी चाहिए। नहीं तो हम जितने शारीरिक भोग को संतोष करने की प्रयत्न करेंगे, भोगने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारा जीवन है ये कुत्ते बिल्ली के जैसा हो जाएगा। लेकिन हमें तो भगवान की तरफ जाना है, तो फिर ये भोग की इच्छा है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें तो भोग की इच्छा छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भक्ति और तेज करनी पड़ेगी। जितनी भक्ति बढ़ेगी उतनी भुक्ति कम हो जाएगी। भुक्ति और भक्ति ये दो शब्द हैं। भक्ति यानी सेवा करना और भुक्ति यानी एंजॉय करना, भोगना, भोगता, भोगना। तो भक्ति और भुक्ति जो लोग अपने लिए इकट्ठा करते हैं, मुझे इसमें काम आएगा, उसमें काम आएगा, ये करूँगा, वो करूँगा, खाने की बहुत इच्छा, सोने की बहुत इच्छा और रिलेशनशिप की बहुत इच्छा, तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमें मनुष्य को जानवर की तरफ लेके जाती है। और मनुष्य जीवन का ध्येय है कंट्रोल करना अपने आप को। हाँ, फुलफिलिंग द मिशन ऑफ द स्पिरिट सोल इज ह्यूमन मिशन। यानी कि आत्मा की जो ज़रूरत क्या है, तो परमात्मा से मिलना। इसलिए जब हम ये भोग का त्याग करेंगे और भगवान का ध्यान और स्मरण करेंगे, तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, तो हमारे आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो ऐसे श्री प्रभुपाद जी अब बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि जीवन का ध्येय ये भगवान की सेवा होना चाहिए, ना कि भौतिक चीज़ों का उपभोग करना। कभी कभी लोग भक्ति में आके भी मटेरियल प्लेटफॉर्म पे भक्ति करने का प्रयत्न करते हैं। यानी क्या, तो भक्ति में आते हैं लेकिन उनका ध्येय रहता है कि मुझे बहुत पैसा मिले। कुछ कथाकार रहते हैं, वो कथा करते हैं, कहते हैं कि मैं इतने 10 लाख रुपया लूँगा, 20 लाख रुपया लूँगा कथा करने का। और कुछ लोग भक्ति में आते हैं लेकिन उनका ध्येय रहता है बड़ा नाम हो जाए। कुछ लोग भक्ति में आते हैं, कहते हैं कि मेरा पावर बढ़ जाए, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। तो फिर भक्ति अगर हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर एज गुड एज आप कोई मटेरियल काम ही कर लो, फिर भक्ति मत करो, क्योंकि भक्ति का आप दुरुपयोग कर रहे हो। अगर कोई भक्ति करता है और उसका उपयोग पैसे कमाने के लिए करता है, कुछ लोग देखते हैं हम कि लोगों को उल्लू बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, उससे पैसे लूटते हैं, लोगों को चीट करते हैं। तो ये भक्ति के नाम पे नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत पाप मिलता है इसका। भगवान कभी माफ़ नहीं करते, क्योंकि जब हम दूसरों को भक्ति के नाम पे एक्सप्लॉइट करने लगते हैं तो लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। और जब लोग भगवान से दूर हो जाते हैं तो फिर भगवान को दुख होता है। भगवान कहते हैं ये कैसा आदमी है जिसको मेरे से लोगों को दूर कर रहा है, जोड़ने के बदले। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि कोई भगवान से दूर हो जाए। इसलिए अगर हम भक्ति में आए हैं तो हमें भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा हमारे अपने आप को। मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना है, जानवर की तरह नहीं रहना। तो यहाँ पे हम पॉज करेंगे।